Next, we have a keynote speaker with us, Honorable Justice Vijendra Jain. He will be discussing the topic of Bhasha and Vidhi. I would like to call you upon the dais, sir. Honorable Justice Vijendra Jain is the former Chief Justice of Punjab and Haryana High Court, Chandigarh. He was enrolled as an advocate in 1969 and practiced in Supreme Court and High Courts in civil, constitutional, taxation, and company matters. He was elevated to the bench in the year 1992. His contribution in making PIL is an effective tool for protection and conservation of environment and restoring rule of law regarding action taken against unauthorized constructions in Delhi granted a new hope in the larger section of the society. He has participated in several international synopsism and seminars dealing with human rights, ATR, private and public international laws, and the applicability of the international law in municipal law. We look forward to learning from you, sir. I am grateful to Mr. Dhyani to have invited me to your Vidhi Utsav. I don't know why he invited me. And I asked him, what should I do in your meeting or the sessions? So every session is booked. So there is one session which you can speak. I say, what is that? He says, Vidhi and Bhasha. I told him, who is interested in Vidhi and Bhasha? And I asked him, because he's sitting here. I say, what is this topic, Vidhi and Bhasha? Can you explain me? Or the handful of audience which is here would be interested in listening what is Vidhi and what is Bhasha and what is correlation. Have they ever applied their mind? But candidly, and I am happy, Mr. Dhyani gave me some input. And he said, sir, we will like to hear you. In what way you like to summarize the correlation, the concept, understanding, contents of Vidhi and Bhasha. I said, Vidhi and Bhasha तो हिंदी के शब्द है. तो अंग्रेजी में बोलना विधियन भाषा को तो अपनी भाषा का अपमान करना है. तो कहने लगे सर आप हिंदी में बोल सकते हैं. मैं कहा मैं तो हिंदी में बोलूँगा ही क्योंकि भाषा का सब्जेक्ट ही विधि और भाषा है. आप जो भी यहाँ बैठे हैं शायद लीगल प्रोफेशन से हैं कुछ लोग, तो अच्छी बात है. मैं तो 1969 में मैंने लॉ किया. 55-54 साल हो गए लॉ के साथ. As a lawyer, as a senior advocate, as a judge, as the chairman of the Human Rights Commissions, a member of the international consultant to the framers of the Thai environmental laws, and so many and so forth. मेरे हिसाब से देश में ऐसा कुछ हो रहा है, पर लीगल क्षेत्र में अभी हम पीछे हैं.
मैं जब सीनियर एडवोकेट या प्रैक्टिस करता था 80s में, तो हमारे पास उस समय नेशनल हाई स्कूल बेंगलोर के अंदर शुरू हुआ, बाद में तो सब स्टेट्स के अंदर बन गए। तो जो भी स्टूडेंट वहाँ से आते थे वो कहते साहब हम IPR के अंदर जाएंगे, या हम कॉरपोरेट सेक्टर के लॉयर होना चाहते हैं। अभी यहाँ पर आप डिस्कशन चल रही थी तो मैंने जो मेरे साथ थे मैंने पूछा भाई ये तो CSR के ऊपर बात कर रहे हैं तो उस पर किस बात की बहस है? CSR, corporate social responsibility, statutory obligation, nobody can find a way, but they find some routes. They find some routes. Anyhow, तो भाषा और विधि हमको ये बेसिस है हमारे यहाँ कानून का। वो एंग्लो सैक्सन जूरिस्प्रूडेंस है, आप सब लोग जानते हैं। एंग्लो सैक्सन जूरिस्प्रूडेंस एक कॉलोनियल पावर ने उस देश को दिया जिसकी संस्कृति, सभ्यता और विधि मीन्स लॉज 5000-7000 साल पुराने थे। पर एज ए नेटिव कॉलोनियल सब्जेक्ट वी हैड नो चॉइस, हमने उन बातों को माना और हमारे बच्चे और आप सब लोग उसी के अंदर परवीन हैं। पर कभी आपने कभी सोचा कि जिस एंग्लो सैक्सन जूरिस्प्रूडेंस को हम बेसिस, फंडामेंटल बेसिस ऑफ नॉलेज ऑफ लॉ समझते हैं, वहाँ पे कंसेप्ट जो है किंग कैन डू नो रॉन्ग, वो कानून के दायरे में नहीं है। जबकि के हमारे जूरिस्प्रूडेंस में तो राजा भी धर्म के साथ बंधित था। हमारे पुराणों में जो बेसिक है, नारद संहिता है, याज्ञवल्क्य संहिता है, वो पूरा एक कोड था। प्रॉपर्टी राइट्स क्या होंगे, क्रिमिनल लॉ क्या होगा, कैसे डिस्प्यूट का निवारण होगा। मैं सिर्फ इसलिए आपको बता रहा हूँ कि ये जो हम पढ़ते हैं और जो 100, 150, 200 साल से जब से अंग्रेज़ों ने किया है, ये कोई नई बात नहीं है। और मैंने ये इवन जाकर के इंग्लैंड के अंदर व्हेन आई वाज इनवाइटेड बाय द चीफ जस्टिस ऑफ इंग्लैंड एंड वेल्स, आई टोल्ड हिम that we have been doing it for last 7,000 years in our country. पर मैंने कहा इक्विवेलेंस, फंडामेंटल देखिए, इन इंग्लैंड किंग कैन डू नो रॉन्ग, बट आई सेड इन माय कंट्री king was also accountable to the court. King was also accountable to its people. क्योंकि under the present jurisprudence which we are going on, which I also argued and interpreted for 52 years in this country, हमको जो accused है उसको सजा दिलवानी है. Basic aim of कानून, law, to maintain law and order in society, that the offender must be punished because an offense against the society. But ancient हिंदू लॉ में, इंडियन लॉ के अंदर पनिशमेंट वाज सेकेंडरी. रिस्टोरेशन ऑफ द प्रेस्टीज ऑफ द पर्सन हु हैज सफर्ड, उसको उस मुकाम पे पहुंचाना, दैट वाज द बेसिक ड्यूटी ऑफ द स्टेट. कितना डिफरेंस है. जिसके साथ अन्याय हुआ है उसको
उसके अन्याय से कैसे बचा करके और हम उसको उसके पुराने घर पे ले जाएं, दैट वाज द बेसिस ऑफ आवर इंडियन जूरिस्प्रूडेंस। क्यों था? बिकॉज आवर लॉज वाज बेस्ड ऑन द कंसेप्ट ऑफ धर्म। ये करना इमोरल है, इररिलीजियस है, नॉट परमिटेड बाय आवर वेदास, नॉट पॉसिबल बाय आवर कस्टमरी लॉ। और ये नहीं करना, ये लिखा है कि ये ऐसा नहीं करना है। उससे पाप और पुण्य का कंसेप्ट वॉज सो प्रिडोमिनेंट इन आवर सोसाइटी। कहते ये नहीं करेंगे, ये करने से पाप लगेगा, झूठ बोलने से पाप लगेगा। एंशिएंट इंडियन सिस्टम में जो गो 1000 years बैक बिफोर द invasion of India by Ghaznavi, सिस्टम कानून का था। वहाँ पर भगवत गीता, कुरान पे शपथ नहीं दिलाई जाती थी, क्यों? देयर वाज ए प्रिजम्पशन कि विल नॉट लाई। 1000 years of slavery have made us to lie। और गीता पे भी कसम खा करके वो भी झूठ बोलते हैं। भाषा और विधि, मैं जो समझता हूँ उसका डायरेक्ट समन्वय है। हम जजमेंट लिखते हैं, हाई कोर्ट्स में अंग्रेजी में लिखते हैं, और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स के अंदर कुछ स्टेट्स ऐसे हैं जो अपना अपना भाषा में लिखते हैं। तमिलनाडु में तमिल में लिखते हैं, कर्नाटका में कन्नड़ में लिखते हैं, बंगाल के अंदर बंगाली में लिखते हैं। फिर उसका जो कि हाई कोर्ट में जाता है, ट्रांसलेशन होता है। ऐसे अब हाई कोर्ट क्या कह रहा है और सुप्रीम कोर्ट क्या कह रहा है, भारत के 98% लोगों को समझ में नहीं आता है। जिसका मुकदमा है वो आपसे पूछता है, वकील साहब, जज साहब ने क्या कहा? कहता है बाहर आ जाओ। बाहर आके बताता, बेवकूफ जज था, तेरा केस खारिज कर दिया, कोई बात नहीं, अब इसकी अपील करेंगे। तो जिस न्याय प्रक्रिया के अंदर जो कंज्यूमर ऑफ जस्टिस है, वो नहीं उसको पता कि क्या हो रहा है, well, it's up to you to ponder and for the future generations to decide, should we continue with this system? For what? We are not a subject of a colonial power. By changing, amending Evidence Act, this act and that act, but substantially relating and retaining the previous provisions in the present statute will not help the society to grow, will not affect the substantive justice system which we require to be revolutionized. The urges and aspirations of people will not be met by half-hearted matters. People may oppose, people has to oppose, people have tendency to oppose. Normally throughout the world, the history of civilization has stated, people will like to have status quo. And if anything is done to remove that status quo to march forward, there is opposition always. तो विधि और भाषा आपने जो टॉपिक रखा, मैं समझता हूँ उसका एक मीनिंगफुल डायलॉग कि हमारे विधि हमारे अपने वैल्यू सिस्टम के ऊपर, हमारे कानून, हमारे स्टैट्यूट्स, उसके ऊपर रखना चाहिए और भाषा सरलतम होनी चाहिए. Why there is so much of litigation? Have you ever thought? Why? खैर कुछ तो प्रोफेशनल PIL वाले हैं
वकील साहब, वो कुछ भी बना लो, PIL फाइल करेंगे। और कुछ जज साहिबान भी ऐसे हैं कि हाँ ले आओ PIL, हम भी बैठे हैं यहाँ पर वेट कर रहे हैं तुम्हारी। दिस सिस्टम हैज़ टू बी चेक्ड। इट इज़ नॉट कंड्यूसिव फॉर द ग्रोथ of the country. It is not conducive for the private litigant whose case is hanging for 10 years, 12 years, 7 years, and he had not to go. And our courts are busy in deciding electoral bonds. अरे भाई इलेक्ट्रल बॉन्ड जो कि है, पैसा जिसके पास है उसने दिया होगा, जिसको दिया होगा। अरे प्राइवेट, अब जो केस पड़े उनको तो डिसाइड कर लो। व्हाट इज द फन? यू आर गोइंग इन टू द रियम जहां पर कोई जाता नहीं है। इस देश के 80 करोड़ लोग तो सर्टिफाइड लोग हैं, क्योंकि खाना फ्री देते हैं। प्राइम मिनिस्टर का वो तो क्रेडिट लेते हैं कि 80 करोड़ लोगों को हम खाना देते हैं। भाई बड़ी अच्छी बात है, पर क्या परमानेंटली 80 करोड़ लोगों को उनको आदत डाल दो कि वे बैठ करके खाना खाएं? दिस आर द इशू विच हैज टू बी अंडरस्टूड। और वो तब तक नहीं होगा। हमारे जो अधिकार, मानवीय अधिकार, मूलभूत अधिकार और हमारी ड्यूटीज एज ए सिटीजन, जब तक अपनी भाषा में लोगों को सारगर्भित तौर के ऊपर एजुकेट नहीं की जाएंगी, तो ये समाज भी और ये देश भी एलिट्स के लिए अलग होगा, और जो 100 करोड़ 80 करोड़ लोग हैं उनके लिए अलग होगा। इसलिए ज़रूरी है कि हमारे एग्जीक्यूटिव को, हमारी जुडिशरी को, हमारे वकील साहिबान को और हमारे जज साहिबान को ये चीज़ समझनी चले, जिससे भाषा और विधि का एक महत्वपूर्ण समन्वय हो और लोगों को उसकी जानकारी, एक जो गांव के अंदर रहता है उसको भी पता लगे। मैं ज़्यादा समय नहीं लेना चाहता आपका, मेरा टाइम 20 मिनट्स का था, and judges are mostly habit of controlling time. So I conclude, and I hope that at least I have ignited something in your mind. Thank you very much. Firstly, I would like to thank you, sir, for the thought-provoking discussion. I would want to extend my sincere appreciation to sir for his thoughtful insights and engaging dialogue. I request Dhyani sir to present him with the memento.